Assalamu alaikum students. Today the topic of discussion is fermentation. Fermentation is the process in which there is incomplete oxidation reduction of glucose. तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है एंड यू नो दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन process is the gain and loss of electron. This one is the process in which there is the gain and loss of energy. Well, when the glucose molecule break, carbon hydrogen bonds break, there is the release of energy, and that energy is in the form of ATP. Fermentation has been the knowledge of man since centuries, but it is believed that it is purely a chemical process. So it's just a chemical process, and the science of fermentation is known as zymology. It's basically a microorganisms activity, and these microorganisms take glucose, means carbohydrate, take food, and then convert that food into energy, but this energy is produced in the absence of oxygen, and this fermentation process is anaerobic, held in anaerobic respiration. So let's start our topic. Here first slide is the definition of fermentation. Fermentation is the process in which there is incomplete oxidation reduction of glucose. ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट होता है. दिस प्रोसेस इज़ नॉट कम्प्लीटली डन. ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज आर नॉट ब्रोकन in the process of fermentation. Louis Pasteur recommended this term fermentation in 1857. Pasteur जो है he convinced the scientific community that all fermentations are the results of microbial activity. He convinced scientists that it is done by some type of bacteria or some type of fungi, and he said that it's a process of incomplete oxidation reduction of glucose. He showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganism. तो ये process जो fermentation का होता है ये कौन इसको कर रहा होता है, इसको करने वाले जो होते हैं वो microorganisms होते हैं. उनकी development होती रहती है उसी food, उसी product के अंदर जिसमें वो मौजूद है, और वहीं पर वो क्या बनाते रहते हैं, उस फूड को खाकर उसी से जो होती है वो प्रोडक्ट बनाते रहते हैं. तो fermentation products are when glucose is broken, there is a process. That process is called as the glycolysis, and after glycolysis there is the production of pyruvic acid, and then that pyruvic acid may convert into some type of products like it may be ethanol, it may be lactic acid, or it may be some other type of organic acids. So पायरुविक एसिड जो होता है जब वो ब्रेक होता है तो वो अपने से एथनॉल जो कि अल्कोहल होता है, या फिर लैक्टिक एसिड जो कि जैसे योगर्ट में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, वो प्रोड्यूस हो सकता है, या कोई और एसिड जो होंगे वो प्रोड्यूस हो सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है दैट इज़ ड्यू टू सम टाइप ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन. Types of fermentation. Fermentations are classified in terms of products. जो प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर बेस करता है कि फर्मेंटेशन की जो है वो टाइप कौन सी होगी. तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है एक्चुअली इसमें डिफरेंट जो टाइप्स के फूड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई. दैट pickles, cucumber, ये kimchi is a Korean food, or yogurt, or some type of alcoholic beverages which may be wine, which may be beer. तो ये सारी जो हैं ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी और हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, और ये हमारी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारा ट्रैक होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि ये
बैक्टीरिया जो होते हैं ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस नेचुरली कर रहे होते हैं। तो ये ना सिर्फ अदर एनिमल्स में बल्कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी ये प्रोसेस नेचुरली हो रहा होता है। तो जो आप खाना खाते हैं वो उस खाने में से कुछ खाना जो होता है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से भी जो है वो ब्रेक हो रहा होता है। तो टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन जो हैं ये प्रोडक्ट की बेस पे इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनिशियल स्टेप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ रेस्पिरेशन। जो स्टार्ट वाले स्टेप्स होते हैं वो रेस्पिरेशन से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो स्टार्ट में ब्रेक डाउन होती है, लाइक ग्लाइकोलिसिस जब हो रही है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, दैट कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड। तो 6 कार्बन जब 3 कार्बन में कन्वर्ट होता है तो ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस से भी मैच कर रहा होता है। द प्रोसेस बिगिनस विद ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन विच द ग्लूकोज मोलिक्यूल इज़ ब्रोकन इनटू 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज मोलिक्यूल इज़ ब्रोकन इनटू 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज इज़ 6 कार्बन वाइल द पायरुविक एसिड इज़ 3 कार्बन। तो ग्लूकोज जो होगा वो क्या करेगा, ब्रेक होगा और 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो है वो वहाँ पे बन जाएंगे। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन 9th क्लास ऑल्सो। and different microorganisms proceeds the further reactions in different ways. Microorganism की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज़ अटैकिंग ऑन द फूड। तो जो भी बैक्टीरिया है, फंजाई है, कोई एल्जी है, कुछ भी है माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो उसके एक्चुअली उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज़ जो है वो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस करेगा। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पायरुविक एसिड। तो एक्चुअली इस पायरुविक एसिड से जो होती है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो बनती हैं। As I told before that glucose is by the process of glycolysis converted into the pyruvic acid, and then pyruvic acid, that is 3 carbon, that 3 carbon converts into different forms, different products like ethanol, like lactic acid, and like organic acids, some type of organic acids. Here the names of 2 types of carbohydrate fermentation, and let me tell here that this fermentation is carbohydrate fermentation because fermentation का process जब होने लगता है तो उसमें glucose break होता है, and glucose is carbohydrate. That's why fermentation is called as carbohydrate fermentation, and it is of 2 types. First one is alcoholic fermentation and the second one is lactic acid fermentation. Let's discuss it. First is alcoholic fermentation, that is done by yeast, and you know yeast is a fungus. This fermentation is carried out by many types of yeast such as Saccharomyces cerevisiae. तो ये इसकी टाइप है Saccharomyces cerevisiae। ये फंजाई की यीस्ट की जो टाइप होती है, ये यीस्ट होता है, तो इससे जो है वो अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन एंड डिस्टिल्ड स्पिरिट्स। और इससे जो है वो डिफरेंट जो हैं वो इस फर्मेंटेशन से क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ब्रेड होती है, बियर होती है, वाइन, ये सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं और डिस्टिल्ड स्पिरिट्स होते हैं। स्पिरिट जो आप लगाते हैं बॉडी पे ये वही वाले हैं, डिस्टिल्ड होते हैं, ठीक है। ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनते हैं और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ही आते हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम पायरुविक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एज ए जो है वो रिलीज़ होती है उसमें से जब प्रोसेस हो रहा होता है। द प्रोडक्ट दैट इज़ द एसिटाल्डिहाइड इज़ देन प्रोड्यूस्ड टू एथनॉल। अच्छा, इसमें जो है वो प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक और कंपाउंड, जब पायरुविक एसिड जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है इसमें पायरुविक एसिड जो होता है वो पहले एक प्रोडक्ट एक और चीज़ में एक और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड जो होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू एथनॉल। तो बाद में जो होता है वो एथनॉल में कन्वर्ट होता है। तो जो एसिटाल्डिहाइड होता है इसके साथ जो है वो एक और जो है वो गैस जो इसमें प्रोड्यूस होती है
वो गैस जो है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फर्मेंटेशन कॉजेज़ द राइज ऑफ ब्रेड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर जैसे कोई डो वगैरह बनाई गई है किसी भी चीज़ की, पिज़्ज़ा की डो है या ब्रेड की डो है, तो उसके अंदर ये यीस्ट क्या करेगा? जब रिएक्शन करेगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो गैस होती है वो उसके अंदर ही जमा होते रहेंगे डो में, जिसकी वजह से वो डो जो होगी वो क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। और आई वॉज ये ओके, एसिटाल्डिहाइड के बारे में थोड़ा सा बताने लगी थी कि एसिटाल्डिहाइड इज़ एन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला जो है दैट इज़ C2H4O। तो ये जो है ये एसिटाल्डिहाइड होता है जो कि बाद में फिर एथनॉल में कन्वर्ट होता है। हेयर इज़ अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में अगेन वही बात जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है उसमें बताई है, ये वही बात है कि पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा दो चीज़ों में, एक है एसिटाल्डिहाइड जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, एंड सेकंड वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिटाल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, वो फर्दर एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि हमारी फ़ाइनल प्रोडक्ट होती है, और उस फाइनल प्रोडक्ट का नाम क्या है? एथनॉल। एथनॉल इज़ अल्कोहल। तो इस वजह से इसको, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट जो हमारी एंड प्रोडक्ट होती है वो अल्कोहल है, एथनॉल अल्कोहल है, इस वजह से इस टाइप का नाम क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Second type is lactic acid fermentation, and lactic acid fermentation is done by bacteria. ये बैक्टीरिया की वजह से होती है और इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इन दिस प्रोसेस पायरुविक एसिड इज़ रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो होगा, यानी स्टार्ट वाले स्टेप्स वही होंगे। फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड एंड देन पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. It is carried out by many bacteria, for example streptococcus and many lactobacillus species. ये टू टाइप्स की इसने यहाँ पे बता दी हैं उसके नेम बैक्टीरिया के जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं। एक टाइप जो है दैट इज़ द स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस जिसके साथ लगा होगा वो राउंड शेप में होते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो हैं वो कर सकते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंड लैक्टोबैसिलस जिसके साथ लगा होगा वो थोड़े से ब्रॉड शेप के होते हैं, थोड़े से लॉन्ग होते हैं, तो उनको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, बार शेप के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों टाइप्स जो दोनों स्पीशीज़ हैं दे कैन डू द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट इन dairy industry where it is used for storing milk and also for the production of various types of cheese. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, जहाँ पे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ पर इस बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको फिर इस बैक्टीरिया को वो लैब में सिंथेसाइज़ करते रहते हैं। और फिर इसके अलावा जो है वो सोरिंग मिल्क, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो उससे वो जो चीज़ होती है वो बनाते हैं, ठीक है, और योगर्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यही आगे उसने डिस्कस किया है कि प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ जो होती हैं वो इसकी मदद से बनाई जाती हैं। हेयर इज़ अ फ्लो चार्ट दैट पायरुविक एसिड, फर्स्ट स्टेप तो वही होगा कि ग्लूकोज जो होगा 6 कार्बन दैट विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड. Pyruvic acid is 3 carbon compound and pyruvic acid is then converted into the lactic acid. The product is lactic acid, that's why this type is called as the lactic acid fermentation. Thank you.